Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 16th of October 2020, Friday. Inspiration of the day is mistakes are proof that you are trying. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Center to borrow rupees 1.1 trillion on behalf of the states. So finally, center government has accepted the request of all opposition ruled states, and in a relief for state, the center has said that it will borrow up to 1.1 trillion, which is an estimated revenue shortfall on account of implementation of GST. जो बेसिकली अपोजिशन रूल स्टेट्स थे उनकी यही डिमांड थी कि जो फाइनेंस की विंडो रीफाइनेंस की विंडो सेंटर स्टेट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है, instead of asking for state government to borrow, center should borrow from RBI and disburse that borrowed money to the states as per their estimated revenue shortfall. तो GST काउंसिल की मीटिंग के 4 दिन बाद फाइनली सेंटर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ऐसे सारे स्टेट्स जिन्होंने ऑप्शन 1 ऑप्ट किया था उनके लिए अब सेंटर गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी और बोरो करने के बाद the borrowed money will be passed on to the states as a back-to-back loan in the lieu of GST compensation, says released. So finally, it may be taken as a victory of opposition ruled states including Punjab, West Bengal and Chhattisgarh. And why all these opposition ruled states were actually claiming or actually demanding center to borrow instead of the states borrowing? Because they were insisting that center should do the borrowing because of 2 reasons. And what are those 2 reasons? First, administratively it is easier for the center to borrow and disburse money to the states as per their GST compensation shortfall. Second reason is that if the center government will borrow that particular money 1.1 trillion, so it can be taken at a low rate of interest compared to the states government. States government को particular loan या borrowings higher interest rate पे मिलेगी in comparison to center. And as we have discussed previously as well, जो स्टेट डेवलपमेंट लोन होते हैं जो कि SDL बॉन्ड्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स प्रेफर नहीं करते इन्वेस्ट करना. दैट इज़ वाई द बोरोइंग एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ दैट बोरोइंग इज़ क्वाइट कॉस्टलियर फॉर स्टेट गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू सेंटर गवर्नमेंट. सेंटर गवर्नमेंट के लिए RBI बहुत सारे ऑपरेशन ट्विस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट. ऑन द अदर हैंड ट्रेजरी बिल्स कैन ओनली बी इशूड बाय सेंटर गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट. एंड इन्वेस्टर्स एक्चुअली फील मोर कॉन्फिडेंट while investing into any treasury bill or government security instead of investing into SDL bonds. Why this is so? Because there is more guarantee associated with treasury bills and government securities issued by any center government or union government. So because of these 2 reasons that it is administratively easier, on the other hand it may fetch the low rate of interest in comparison to the SDL or the states government. इन्हीं दोनों रीज़न की वजह से जितनी भी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं जैसे लाइक पंजाब, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, दे वर डिमांडिंग दैट दे आर रेडी फॉर बोरोइंग बट इंस्टेड ऑफ द स्टेट बोरोइंग द सेंटर शुड बोरो. सेंटर मनी ले RBI से और वो मनी स्टेट्स गवर्नमेंट में डिसबर्स कर दे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे. सो फाइनली सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट की ये डिमांड, ये रिक्वेस्ट मान ली है और जो बहुत लॉन्ग टाइम से टशल चला आ रहा था फॉर GST compensation that has been actually resolved or even seems to be resolved. So this is the revenue stress and the borrowing of different states government. और इतनी बोरोइंग के बाद ही जो ऑपोजिशन लेड स्टेट्स हैं वो ये कह रहे थे कि ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर रखी है. अगर आप देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सब ने ऑलरेडी कोविड-19 के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बोरोइंग करी थी. दैट इज़ द डेटा फ्रॉम April 6 to October 6.
और इसीलिए स्टेट्स गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम ऑलरेडी इतना बोरो कर चुके हैं कोविड-19 के ड्यूरेशन में, अब अपने जीएसटी को भी कॉम्पनसेट करने के लिए अगर हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड इट मे फेच अ वेरी हायर इंटरेस्ट रेट। और इसी डेटा की वजह से नंबर ऑफ जो स्टेट्स थे वो एक्चुअली एग्री नहीं कर रहे थे ऑप्शन 1 से, बट चूंकि अब गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट की बात मान ली है तो बहुत जल्द ही यूनियन गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करके जो भी जीएसटी कॉम्पनसेशन का रिवेन्यू का शॉर्टफॉल हुआ है उतने अमाउंट का, दैट इज़ 1.1 ट्रिलियन का बोरोइंग करके स्टेट्स को डिसबर्स कर देगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। मार्केट्स स्लम्प्स ऑन फेडिंग यूएस स्टिमुलस होप कोविड सर्ज। थर्सडे को जितने भी ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस थे दे ऑल फेल शार्पली बिकॉज ऑफ द global sell-off in equity as the hopes of reaching a stimulus deal before US presidential election diminished। तो अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले स्टिमुलस जो यूएस इकोनॉमी स्टिमुलस है उसकी होप करी जा रही थी, जिसकी वजह से जो मार्केट था वो बहुत ज़्यादा हाई गया था। बट अब थर्सडे को इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है कि जो भी यूएस स्टिमुलस पैकेज आने वाला है, यूएस इकोनॉमी को स्टिमुलस पैकेज या सपोर्ट पैकेज आने वाला है, वो अभी फ़िलहाल के लिए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले नहीं आएगा। और इसी होप के साथ ग्लोबल सेल ऑफ देखा गया इनटू इक्विटी मार्केट, एंड बिकॉज ऑफ दिस सडन सेल ऑफ द मार्केट and the different market indices, whether it is India or the Europe or the USA, all have seen the significant fall. It was considered as the biggest single day fall for the benchmark indices since September 24. And this is the 5th biggest decline into this financial year. तो अभी तक का ये 5वां सबसे बड़ा डिक्लाइन है, जिसमें जो सेंसेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.6% और निफ्टी 2.4% से डाउन क्लोज हुआ। एंड व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फॉल? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूएस स्टिमुलस पैकेज गेटिंग पुश्ड बियॉन्ड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ऐसी होप करी जा रही थी कि जो यूएस इकोनॉमी के लिए स्टिमुलस पैकेज आने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू लूट द वोटर्स, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर के आए जिससे उनका वोटिंग रेशियो बढ़े। बट अब जो वाइब्स आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही है, जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उससे ही पता चल रहा है कि इट इज़ मोर लाइकली दैट द यूएस स्टिमुलस पैकेज गेटिंग पुश्ड बियॉन्ड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एंड देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट द डोनाल्ड ट्रंप्स प्रॉस्पेक्ट। तो पहला ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है? कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स हैं वो डाउन हुए हैं। तो राइजिंग कोविड केसेस एंड टाइटनिंग restrictions on European market has actually clouded the sentiments of investor. That is why they start selling off their equity in order to get the better deal before the deep shortfall or deep fall down. If we talk about the statistics, so these 5 companies are the top losers. कौन सी 5 कंपनीज हैं? बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बजाज फाइनेंस ने टॉप किया विद -4.7% वन डे चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन कंपैरिजन टू October 14। जो बेसिक सेक्टर्स हिट रहे बिकॉज ऑफ दिस शार्पली फॉल डाउन, दैट इज बैंक, financial services, IT, media and reality. All these were the affected, or we can say worst affected segments or the sector on Thursday. And this is the performance of Nifty 50 that has been closed below 2.4%. And this is the performance of India VIX, that is volatility index. मार्केट कैपिटलाइजेशन में अप्रॉक्सीमेटली -3.25 रुपीज़ ट्रिलियन रुपीज़ का फॉल देखा गया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो थर्सडे वॉज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर शेयर मार्केट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ग्लोबल इवेंट्स।
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेट टू गेट मोर DA. DA stands for dearness allowance. Dearness allowance means महंगाई भत्ता, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता. So the union government is set to change the base year for the consumer price index for industrial workers. The government के पास proposal है that government is going to change the base year for calculation of the consumer price index for industrial worker. Now what is the role of base year? Base year basically ऐसा ईयर होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके कंपैरिजन में हम किसी पर्टिकुलर इंडाइसेस में ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं कि 2011 के कंपैरिजन में 2020 में 3.2% का इंक्रीज देखा गया इन टर्म्स ऑफ CPI. तो जब भी हम इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, किसी भी इंडेक्स को, इट इज़ नॉट ओनली CPI, इट इज़ नॉट ओनली WPI, इट इज़ नॉट ओनली GDP, इट इज़ नॉट इवन फिजिकल डेफिसिट, कोई भी इंडाइसेस हो, किसी भी इंडाइसेस को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वी हैव अ बेस ईयर. GDP के कैलकुलेशन के लिए भी बेस ईयर है, CPI के कैलकुलेशन के लिए भी बेस ईयर है, WPI के कैलकुलेशन के लिए भी बेस ईयर है. इवन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी होते हैं जब टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए भी बेस ईयर डिसाइड किया जाता है. तो बेस ईयर के बेसिस पर ही या बेस ईयर के कंपैरिजन पर ही हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इंडाइसेस में कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है. क्यों? क्योंकि अगर हर बार बेस ईयर चेंज होगा तो परसेंटेज जो चेंज आएगा दैट विल नॉट बी कंपैरेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो हमारे पास डेटा होगा वो कंपैरेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमने पहले इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर हमने कभी 2011 का बेस ईयर लिया, तो अगर हम 2020 का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो 2020 में 2011 के अकॉर्डिंग ये हुआ. 2021 में हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने 2015 का डेटा ले लिया, तो हमने कहा 2015 के बेसिस पर 2021 में पर्टिकुलर इंडाइसेस में ये चेंज है. तो जो दो डेटा हमें मिलेंगे, जो दो डेटा सेट हमें मिलेंगे 2020 का 2021 का, वो कंपैरेबल नहीं होंगे. क्यों कंपैरेबल नहीं होंगे? क्योंकि उन दोनों का बेस ईयर अलग है. तो हर इंडेक्स के केसेस में हम जनरली एक बेस ईयर डिसाइड करते हैं. तो जब भी वर्कर्स की सैलरी कैलकुलेट होती है तो उसमें डियरनेस अलाउंस जो होता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आपको पता होगा बेस सैलरी होती है, HRA होता है, TA होता है, DA होता है, एंड नंबर ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स आर देयर व्हेनेवर वी कैलकुलेट द सैलरी और द कॉम्पनसेशन और द वेजेस फॉर एनी वर्कर और एन एम्प्लॉय. तो जब भी CPI कैलकुलेट किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता. महंगाई भत्ता जब गवर्नमेंट देती है तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट को महंगाई तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो महंगाई कैसे कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से. और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो करंट बेस ईयर है वो क्या है? 2011-2012. तो अब जो गवर्नमेंट है वो ये प्रपोजल कंसीडर कर रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डियरनेस अलाउंस जो कैलकुलेट किया जाता है वो CPI के बेसिस पर किया था. उस CPI का जो बेस ईयर है उसको चेंज किया जाए, जिससे कि जो एक्चुअल कैलकुलेशन आएगी डियरनेस अलाउंस की वो डिफरेंट होगी. डेफिनेटली ईयर बाय ईयर महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अगर हम बेस ईयर चेंज करेंगे तो देयर इज़ अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दैट द CPI विल कम हायर. CPI जैसे हायर आएगी तो जो डियरनेस अलाउंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ेगा. डियरनेस अलाउंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम वेज फॉर प्राइवेट सेक्टर वर्कर. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ये डियरनेस अलाउंस चेंज कर रही है तो उसका खाली इम्पैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर पड़ने वाला है कि केवल उनको ही डियरनेस अलाउंस मिलता है. Even it has an impact on the minimum wage calculation for private sector worker. So the Union Ministry or the Union Labour and Employment Minister Santosh Kumar Gangwar is scheduled to release the new CPI IW index keeping 2016 as a base year. और ऐसा assume किया जा रहा है कि 2016 को base year रखा जाएगा. और CPI IW के केस में जो बेस ईयर था वो पहले क्या था? दैट वाज 2001. स्टूडेंट माइंडेड CPI बहुत तरीके से कैलकुलेट किया था हमने. जो CPI एक जनरली हम सुनते हैं दैट इज CPI ओनली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका जो बेस ईयर है 2011 और 12 है. बट इसी तरह CPI रूरल होता है, CPI अर्बन होता है, CPI कंबाइंड होता है, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जिसको हम CPI IW बोलते हैं. तो जो CPI IW था उसका बेस ईयर 2001 है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं 2001 के इन्फ्लेशन बेस के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अभी तक महंगाई भत्ता मिलता था.
अब गवर्नमेंट उस बेस ईयर को चेंज कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ लाइकली टू बी फाइनेंशियल ईयर 2016। तो जो न्यू CPI IW इंडेक्स होगा उसका बेस ईयर 2016 होगा, ये आप याद रखेंगे। दिस में कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अब जो न्यू इंडेक्स है उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का DNS अलाउंस कैलकुलेट होगा। ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स हैं उनका मिनिमम वेज इस पर्टिकुलर बेस ईयर के अकॉर्डिंग ही फिक्स किया जाएगा। द गवर्नमेंट विल अनाउंस दैट इट विल रिवाइज द CPI IW बेस ईयर अगेन इन 2021 एंड द वर्क ऑन इट विल बिगिन नेक्स्ट ईयर। तो गवर्नमेंट का अब कहना है कि जो 2001 से चेंज नहीं हुआ था अब इसको हम पीरियोडिकली और रेगुलरली अपडेट करेंगे सो दैट एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स विल बी benefited from increasing or shortening inflation rate into the country। कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है बट सैलरी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट इज़ सिंपली लाइक दैट। तो अगर क्योंकि इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ता है तो अगर लॉजिकली हम देखें तो हर साल CPI IW इंडेक्स चेंज होना चाहिए। तो फाइनली government has adopted this rule and government has also said that it is going to announce or release this particular index soon and it will revise this CPI once again for the financial year 21 and for work for it will begin to the next year itself। This is the CPI IW basket and फूड आइटम्स हो गए, पान सुपारी, टोबैको, फ्यूल, लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर, मिसलेनियस। देयर आर नंबर्स ऑफ आइटम दैट हैज बीन एक्चुअली कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द CPI IW। IW मीन्स इंडस्ट्रियल वर्कर। बेसिकली CPI IW की बास्केट में वो सारे गुड्स आइटम्स होते हैं जो बेसिकली एक वर्कर के लिए बेसिक एमिनिटीज़ के फॉर्म में काम करते हैं या डे टू डे की लाइफ में उसके लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पान सुपारी, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट को भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट असाइन किया गया, कि इंपॉर्टेंट वेटेज असाइन किया गया, कि जनरली जो वर्कर क्लास है दे इंडल्ज इनटू सच टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है और बहुत अच्छा खासा वेटेज है इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए। हालांकि जो मेजर वेटेज है वो फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट को दिया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। बॉन्ड मार्केट चेयर्स एज RBI एक्सेप्ट full ₹20,000 crore in OMO। The first outright open market operation, that is OMO, of this fiscal year by RBI received bid of more than 5 times the 20,000 crore amount on offer। तो सेंटर बैंक ने दैट इज़ RBI ने अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि उसने 20,000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन किया था उसके एवरेज में उसके बदले में अप्रॉक्सीमेटली 1.13 ट्रिलियन की बिड रिसीव करी है सेंट्रल बैंक ने, वाइल इट एक्सेप्टेड द बिड अप टू 20,000 करोड़ बाइंग 4 सिक्योरिटीज़। And this was the first outright OMO of this fiscal year as a central bank had cancelled one OMO of 10,000 crore in the month of September। If you remember, RBI ने पहले अनाउंस किया था कि वो 10,000 करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए जा रही। लेटर ऑन RBI ने कैंसिल कर दिया था 10,000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन और उसके बदले में ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च किया था। बट रिसेंटली RBI ने अनाउंस किया था दैट RBI विल गो फॉर 20,000 करोड़ ऑफ OMO स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स को सेल करती है या परचेज करती है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। सो ऑन थर्सडे OMO द RBI एक्सेप्टेड 6,600 करोड़ ऑफ बॉन्ड मैच्योरिंग इन 6 years, 5,177 crore in 8-year bonds and 3,465 crore in 10-year bonds and 4,748 crore in the bond maturing in financial year 2033। तो 4 तरह के बॉन्ड्स इशू किए थे। ऐसे बॉन्ड जो एक 6 साल में मैच्योर हो रहे हैं, ऐसे जो 8 साल में मैच्योर हो रहे हैं, और एक ऐसे बॉन्ड जो 10 साल में मैच्योर हो रहे हैं, और एक ऐसे बॉन्ड जो फाइनेंशियल ईयर 33 में मैच्योर हो रहे हैं। और इन चारों तरह के बॉन्ड्स में अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ के बिड जो है वो RBI ने एक्सेप्ट करी है। तो देयर वॉज नो सिक्योरिटी वाइज लिमिट ऑन बॉन्ड्स। द कट ऑफ फॉर द 10-year बॉन्ड केम एट 5.89%। एंड इफ़ यू रिमेंबर 10 ईयर का जो बॉन्ड होता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ बेंच मार्क फॉर अदर शॉर्ट ऑफ लोन्स
into the economy. The 10-year bond was the old benchmark, issuance for which was stopped after just 3 months. तो जो 10 साल का बॉन्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.8% तक गया। सो आरबीआई के 20,000 करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो बॉन्ड मार्केट है उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। दैट इज वाई दिस न्यू बॉन्ड मार्केट चीयर्स एट्स आरबीआई एक्सेप्ट द फुल 20,000 करोड़ इन OMO. So this is the first outright OMO of financial year 21 जिसमें 4 तरह के बॉन्ड इशू किए गए। आप देख सकते हैं फेस वैल्यू जो ऑफर करी गई, बिड एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एंड द कट ऑफ यील्ड फॉर ऑल दीज बॉन्ड्स। We have to consider only 10-year maturity bond and for that the interest rate was 5.8%. तो prevailing interest rate हम कह सकते हैं अभी फिलहाल के इंडियन इकोनॉमी में 5.8% का ही है या अप्रॉक्सीमेटली नियर बाई इसी के है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। एयर इंडिया बिडिंग नॉर्म्स टू बी ईज। गवर्नमेंट कितनी बार एयर इंडिया की बिडिंग के लिए टेंडर फ्लोट कर चुकी है बट बहुत अच्छी या लुक्रेटिव बिडिंग नहीं मिल रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर एयर इंडिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन है वो पेंडिंग है एयर इंडिया में एंड नो एंटिटी, नो कॉर्पोरेट एंटिटी वांट टू इन्वेस्ट in Air India because of this huge debt burden that is prevailing on Air India। इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो बिडिंग है उसको रिवाइज करिए, बिडिंग नॉर्म्स को रिवाइज करिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो एयर इंडिया के जो बिडर्स होंगे उनको लोन फ्री एयर इंडिया मिलेगा। जितना भी लोन है उसका जो खर्चा है वो या उसका रीपेमेंट जो है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। जो बिडर्स होंगे दे विल गेट द लोन फ्री एयर इंडिया। इन स्पाइट ऑफ दैट देयर वॉज अ नो very lucrative quotations for Air India. So the government has decided to take another shot for privatizing the debt-laden Air India with a relaxed term, as the postponement of the sale process would cost the exchequer an estimated rupees 12,000 crore into the next 2 years। तो अगर ये पर्टिकुलर सेल प्रोसेस बिगन नहीं होती, सेल प्रोसेस मैटेरियलाइज नहीं होती, then it may cost and public exchequer approximately 12,000 crores। So rule will be changed to make it easier for the prospective suitors to bid on the enterprise value, a popular metric used to take over deals। Enterprise value include the equity value of the company along with the short term and the long term debt as well as the cash by company's balance sheet। तो गवर्नमेंट अब बेसिकली जो डेट अमाउंट है एयर इंडिया का उसको मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट बनाने जा रही है फॉर अ बिड। हालांकि टाटा ग्रुप जो कि ऑलरेडी एयर एशिया और विस्तारा की फ़्लाइट्स में, एयरलाइंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, टाटा ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया था इन ऑर्डर टू एक्वायर दिस गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। और जो करंट टर्म्स हैं सेल के टर्म्स उसके अकॉर्डिंग जो बायर है उसको अप्रॉक्सीमेटली 23,286 करोड़ का जो डेट है एयर इंडिया पर वो भी एक्वायर करना पड़ेगा। वी रिक्वायर टू टेक ओवर द डेट ऑफ एयर इंडिया। और जिसकी वजह से, इतने बड़े डेट अमाउंट की वजह से ही बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने टेंडर डाला ही नहीं एयर इंडिया की सेल प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि 23,000 करोड़ का ऑलरेडी डेट है उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो पहले उसको खरीदने में, कोई भी इन्वेस्टर पहले उसको खरीदने में इन्वेस्ट करे, इसके बाद उसका 23,000 करोड़ का डेट है उसका रीपेमेंट करे। तो दैट विल बी द वेरी कॉस्टली डील फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में एविएशन सेक्टर इज नॉट लुकिंग वेरी प्रॉफिटेबल फॉर अ रीसेंट टाइम। दैट इज वाई देयर इज नो इन्वेस्टर, देयर इज नो बिडर फॉर दिस एयर इंडिया। एंड because of this and owning of all these reasons, the government is actually trying to infuse approximately 1,000 crore more money in order to keep the company a going concern, but still it is not working and the no investor or no bidder is actually showing interest in order to buy that debt-laden company, that is Air India। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 3 firms get clinical trial note for alternative COVID drugs। तो डॉक्टर रेड्डीज, पीरामल फार्मा एंड Cadila Healthcare, 3 companies have actually got the note from the regulatory authorities for the clinical trial of alternative COVID drugs. And the number of domestic players are already working on off-label therapies that may be useful for treating the COVID-19. So the drug regulator is evaluating the several of these proposals that have come from these firms such as Dr. Reddy's Laboratories, पीरामल एंड सो ऑन। तो अभी के लिए इन 3 कंपनीज़ को कोविड-19 के जो ड्रग, ऑल्टरनेटिव कोविड-19 के जो ड्रग्स हैं उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल करने का अप्रूवल मिल गया है। माइंड इट स्टूडेंट, इट इज़ नॉट वैक्सीन, इट इज़ फॉर ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंश्योरर टू ऑफर स्टैंडर्ड टर्म्स लाइफ पॉलिसी फ्रॉम जैम. The Insurance and Regulatory Development Authority of India, that is IRDA, has come out with a standard individual term life insurance product called सरल जीवन बीमा. और ये सरल जीवन बीमा जो पॉलिसी है ये सारे जितने भी इंश्योरर कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उन सब के लिए मैंडेटरी होगा कि ये सरल बीमा जीवन बीमा योजना को ऑफर करें फ्रॉम जनवरी 1, 2021 onwards. And insurer have to file the product with the regulator latest by December 1. And this will be non-linked, non-participating, individual, pure risk premium life insurance plan. And this will pay the sum assured in lump sum amount to the nominee in case of a life insurance death during the policy term. और इससे पहले एक और पॉलिसी आई थी जिसका नाम था आरोग्य संजीवनी and standard COVID product Corona Kavach and Corona Rakshak. So under this new standard term project there will be no exclusion other than suicide. Suicide के केस में इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, that will not cover the suicide, but apart from that all other are covered under this new product of insurance company that is actually floated by IRDA. And there will be no discrimination, no restriction on the ground of gender, place of resident, travel, occupation, education, qualification. इसके बेसिस पर कोई restriction या कोई conditions नहीं होंगे. It means that particular product will be available to all individual broadly to meet out the need of an average customer. And these are the certain important points for that insurance policy that you can go through. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, एक्सपोर्ट्स राइज 6% फॉर फर्स्ट टाइम इन 7 मंथ, इम्पोर्ट डाउन टू 19.6%. जो कि करंट सिनेरियो चल रहा है कंटिन्यूसली इंडियन इकोनॉमी में. जो इम्पोर्ट है वो डाउन हो रहा है और इस पर्टिकुलर लास्ट 7 मंथ में जो इंडिया का इम्पोर्ट है वो 19.6% तक डाउन किया, बट जो एक्सपोर्ट है अप्रॉक्सीमेटली 6% तक इंक्रीज किया है इनटू द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 7 मंथ. सो सितंबर के मंथ में एक्सपोर्ट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है, हालांकि इंपोर्ट अभी भी डाउन हुआ है. और अगर आप क्या तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि इंडिया में इंपोर्ट जो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स का होता है और रॉ मटेरियल का होता है. तो अगर हमारा इंपोर्ट डाउन हो रहा है तो दैट इज़ कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग उतनी स्पीड से नहीं होगी, उतनी पेस से नहीं होगी. क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट डाउन हो रहा है. इंपोर्ट इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ सबटल डिमांड इन द इकोनॉमी. दैट इज व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और द रॉ मटेरियल. दैट इज व्हाई इंपोर्ट इज डिक्लाइनिंग. तो फिलहाल सितंबर के मंथ में एक्सपोर्ट में 6% का ग्रोथ देखा गया है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली वेरी अप्रिशिएबल. वाई? बिकॉज इम्पोर्ट एक्चुअली जो इम्पोर्ट है वो तो डाउन ही हो रहा है. और बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंडिया इज करेंटली ऑन पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, दैट इज ट्रेड सरप्लस. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, स्टिमुलस 2.0 हैज़ मिनिमल फायर पावर टू सपोर्ट ग्रोथ, सेज Moody. So India's second round of stimulus package will provide the little support to the growth and highlights budgetary constraint to back the economy during the very sharp contraction, rating agency Moody said on Thursday. तो जो सेकेंड स्टिमुलस पैकेज आया है जिसमें गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी LTC को यूज़ करने के लिए कहा इन ऑर्डर टू टर्न अप द डिमांड, और स्टेट्स जो गवर्नमेंट है उनकी लोन की लिमिट या उनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करने की बात करी है. इन दोनों ही डिसीजन से के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का ये फोकस था कि जो फेस्टिव सीजन है उसमें ग्रोथ बढ़ेगी, उसमें एक्सपेंडिचर बढ़े स्टेट्स गवर्नमेंट का. हालांकि जो मूडीज़ है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी मूडी है, उसका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस पैकेज 2.0 लाया है दैट हैज़ अ वेरी मिनिमल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. की डिमांड को बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं करेगा. जबकि डिमांड बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ प्रोग्रेस नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि मूडीज़ का कहना है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्टिमुलस 2.0 का लाया है, ये स्टिमुलस 2.0 पैकेज लाया है, दैट इंडिकेट्स द बजटरी कॉन्स्टेंट कि अभी गवर्नमेंट के पास एक्चुअली एक रिवेन्यू है ही नहीं जो कि गवर्नमेंट एक्चुअली एक्सपेंडिचर कर सके, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करे या हेलीकॉप्टर मनी प्रोवाइड करे या मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ करे. तो दैट एक्चुअली इंडिकेटिंग द
poor budgetary conditions of union government. Therefore, it is going to have a very minimal impact on demand and vice versa on growth. और गवर्नमेंट को उस पर कितनी कॉस्ट है? गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 46,700 करोड़ की कॉस्ट आएगी फॉर बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस 2.0 और ये जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 0.2% है. So the measure will involve additional direct official spending of around 41,000 crore, but it will not require fresh funding given that government lifted its borrowing limit earlier in 2020 to allow for coronavirus related expenditure, and because of that this particular stimulus 2.0 has a minimal firepower. ऑन द अदर हैंड IMF ने कहा है कि इंडिया की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इस समय जो इंडिविजुअल है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, वल्नरेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनको प्रोटेक्ट करना होना चाहिए, उनको हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना होना चाहिए, ना कि इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिजनेस को या मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जैसे गवर्नमेंट का भी फोकस है. तो IMF का कहना है दैट इंडिया शुड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स पीपल एंड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ अदर सेक्टर्स. ऑल्दो जो स्टिमुलस 2.0 आया है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा फेवरेबल फोरकास्टिंग या एस्टिमेट्स नहीं हैं, प्रोजेक्शंस नहीं हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के भी और एक्सपर्ट्स के भी. तो गवर्नमेंट का जो बेसिक पर्पस था कि इस पर्टिकुलर पैकेज से फेस्टिव सीजन में कुछ डिमांड को जनरेट किया जाए और जब डिमांड जनरेट होगी तो ग्रोथ अपने आप होगी. तो ऐसी जो लिंक है वो सक्सेसफुल होती हुई फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, मार्केट स्लम्प्स ऑन फेडिंग US स्टिमुलस होप कोविड सर्ज. वोकैबुलरी ऑफ द डे इज इम्पासे. इम्पासे मीन्स गतिरोध, डेडलॉक, स्टेलमेट, स्टैंड ऑफ, साइड ट्रैक, all are the synonyms. This is the reference. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.